Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine, happy and safe, and having a good time with your family at home. This is your English educator, and today's our topic is about an African safari, and this lesson has been incorporated in your U3 syllabus. So before going through the lesson, let me tell you an important information. Those students who have not taken or collected their assignments yet, they are advised to take, they are informed to take their assignments or these assignments or material as soon as possible, so that they don't have any difficulty while having their online classes. They must access to the school authorities to collect their assignments, right? So those students who have not taken, they will take this into consideration, serious consideration. So dear students, let's get started. Dear students, as you are quite conscious of the fact that due to the outbreak of pandemic, we are not able to go to schools yet, go to our schools yet, and we have got stuck at our homes. And under these uneven circumstances, it has this initiative has been taken to teach you through this online medium. And so far as these online classes are concerned, they have been proved very effective and productive. So once again, we are here. I'm here to teach to you. I'm available at your service, and today's our topic is about an African safari. Here you can see on the top of the page. You will also open your books. It's page number 85, right? Dear students, as you already know that this is the subject, that is English is a language, and so far as the language is concerned, it is an instrument. It is an instrument through which you can communicate, you can express, you can share your ideas, feelings, thoughts, and emotions to the other people around you. So for this purpose, you will have a strong grip on the vocabulary, on the accent, intonation, and so far as this pronunciation is concerned. So for this, I will read the lesson. First of all, I will read the lesson so that the pronunciation of the difficult words or the eccentric words, the words which you are not familiar with, could be made clear. So for this, you will be very keen and passionate, as you should have been usually, and you will be, I hope you will be very passionate. So far as our today's class is concerned, you will be all eyes and all ears rather. तो आप गौर से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि लेसन को पहले हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द लेसन फॉर यू. जब मैं रीडिंग करूंगी तो यू विल आल्सो गो थ्रू सो दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स कुड बी मेड क्लियर. आपको पता है कि इन एवरी सब्जेक्ट न्यू वर्ड्स आर एडेड, so that your vocabulary could be enhanced, your vocabulary could be beefed up. तो इसके लिए आपको क्या करना है, you will seriously आप देखेंगे बुक को, जहाँ से पहले मैं रीड करूँगी. After that I will try to understand the meaning of the lesson also. First of all, I will read the lesson. So let's get started without wasting our time further. So have you ever been on a trip? First of all, we will ponder upon this title, African Safari. An African Safari. Africa is the name of a continent, you know. Safari is actually a campaign or expedition, right? Safari is actually एन एक्सपेडिशन और कंपेन, ऐसी मुहिम जिसके बारे में जब हम जो हम करते हैं, कैरी आउट करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेडिशन. और एक्सपेडिशन का दूसरा है, दिस इज द सिनोनिमस ऑफ दिस एक्सपेडिशन और कंपेन, उसी को बोलते हैं हम सफारी. अब ये जाते हैं एक एक्सपेडिशन के लिए, एक कंपेन के लिए, जहाँ ये डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से, और चीज़ों को देखना चाहते हैं, वहाँ की जगह को, उनके उस प्लेसेस के बारे में, एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. तो यही है ये सफारी एक्सपेडिशन. तो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस सफारी. एज यू नो दैट जो ये हमारा लेसन है, दिस इज़ अबाउट एन सफारी. तो इसमें क्या होता आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे. एंड पहले हम इसको रीडिंग करते हैं. एंड आई विल बी द बाइलिंगुअल. सो सम स्टूडेंट्स हैड क्लेम्ड अर्लियर इन द प्रीवियस क्लासेस दैट दे आर नॉट एबल टू understand the English completely. So from then I have started the lecture both in English as well as in Urdu. So I will be the bilingual. तो इससे आप जो है पहले हम पढ़ेंगे इसको. Have you ever been on a trip to see wild animals in a jungle or a game sanctuary? क्या आप कभी ऐसी ट्रिप पे गए हुए हैं जहाँ आपने जंगल में एनिमल्स को देखा हो, और एक गेम सैंक्चुरी ऐसी जगह को कहते हैं, द प्लेस विच इज़ प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड फॉर द एनिमल्स, सो दैट एनिमल कुड बी
made safe from the anthropogenic activities like hunting and poaching. Poaching और hunting जो होता है उससे एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि जितना जो एनिमल जो ह्यूमन बींग्स हैं ये हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ को के लिए एनिमल्स को हंट किया जाता है, तो इससे जो है एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थ्रेट मिला है, जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड हुई है, और इससे जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा वो डिस्टर्ब हुआ है। तो ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कैसे जो है एनिमल्स टू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस सो फार एज दिस इकोसिस्टम, सो फार एज द लाइफ ऑन दिस प्लैनेट दैट इज अर्थ इज कंसर्न। जहाँ तक हमारी जिंदगी का ताल्लुक है, जो एनिमल्स हैं इनका भी बहुत ही अहम रोल है। तो सेंचुरी कैसी जगह होती है? प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ एनिमल्स को प्रिजर्व रखा जाता है, राइट। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम सीइंग एनिमल्स इन ए जू? क्या एनिमल्स को जब हम जू में देखते हैं उससे ये कितना डिफरेंट है? हाउ डिफरेंट इज दिस टू सी द एनिमल्स इन ए जू, या फिर डायरेक्टली जंगल्स में जाकर एनिमल्स को देखना? तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रीड ऑन टू द फाइंड आउट द थ्रिल ऑफ गोइंग। थ्रिल मीन्स द प्लेजर, द एक्साइटमेंट यू आर हैविंग व्हेन यू आर गोइंग टू सी समथिंग लाइक दिस। ऐसी चीज़ को देखना जब आप ऐसी जगह को देखना चाहें चीज़ों को, तो आपको एक थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होती है, प्लेजर होता है। तो यही प्लेजर था, इनको थ्रिल था कि कैसे ये एनिमल्स को कैसा थ्रिल होता है। फाइंड आउट द थ्रिल ऑफ गोइंग ऑन ए सफारी मीन्स एक्सपीडिशन ऑफ A safari, how interesting, कितना interesting है। Are we going actually to see lions and tigers? Asked very excited Amit. Amit was very excited. Yes, we will definitely see a number of wild animals, said Mr. Wilson, his father. First of all, I will read the lesson. Amit, why don't you find out a little about the different types of animals you are most likely to see? Yeah, you can find out from the internet, said his mother. Come on, Dad, let's find out, said Amit as he pulled his father towards the computer. तो इससे क्या है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक ट्रिप पे जाते हैं, एक कैंपेन के लिए जाते हैं, एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं, टू फाइंड अबाउट द एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायंस, राइट। तो अमित जो होता है, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही इज एक्सट्रीमली thrilled to have such a journey in order to find out more about these animals like tigers and lions और tigers के बारे में जानना इसको बहुत ही थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होती है, प्लेजर होता है। तो ये बहुत ही एक्साइटेड होता है, बट ये क्या कहता है अपने फादर से, यस वी आर, इसके फादर जो है वो बोले यस वी विल डेफिनेटली सी ए नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ हम बहुत सारे जानवरों को देखेंगे, सेड हिज फादर, जिसका नाम होता है मिस्टर विल्सन। अमित, वाई डोंट यू फाइंड आउट? अब ये अमित को बोलता है हम थोड़ा सा इसके मतलब इसको इस इंफॉर्मेशन को और हम इंफॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट करना चाहेंगे, तो जो हम इसको इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दीज एनिमल्स एंड प्लेसेस थ्रू इंटरनेट। तो ये अब इंटरनेट के जरिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। कम ऑन डैड, ये अब इसको बोलता है अपने फादर को, आ जाओ, वी विल गो थ्रू अबाउट दीज थिंग्स थ्रू द इंटरनेट, कंप्यूटर के थ्रू। Amit and his dad selected the places that they wanted to visit and they made notes. अब इन्होंने कुछ ऐसी जगहों को जहाँ ये विजिट करना चाहते थे वो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और नोट्स बनाए। यू विल ऑल्सो हैव टू मेक डायरी एंट्रीज एवरी डे। अब ये इसके जो फादर हैं, मदर है इसकी, ये इसको बोल रही है यू विल हैव ऑल्सो टू मेक डायरी एंट्रीज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो कुछ आप देखो, वट एवर यू विल सी देयर, यू विल pen down all the incidents, all the experiences that you will gain from that very those very places. जो भी जगहों से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो इंसिडेंट्स आप वहाँ देखोगे, तो आप उनको पेन डाउन करोगे, उनको लिखोगे डायरी पे। मेक श्योर यू मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल सी यू विल नीड टू टेक। अब ये बोलती है इसकी मदर, यू विल हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल हैव टू कैरी विथ यू, अलॉन्ग विथ यू। तो जब आप अपनी जर्नी के लिए निकलोगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको कैरी करनी है। तो डोंट फॉरगेट टू कैरी द डायरी। डायरी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि आपको उस पर पेन डाउन करने हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप वहाँ पे एक्सपीरियंसेस देखोगे, इंसिडेंट्स देखोगे। अब इसकी मदर रिमाइंडेड हिज मदर एज शी फिनिश्ड कुकिंग द डिनर। जैसे उसने कुकिंग डिनर को फिनिश किया, पकाया उनके लिए, तो आफ्टर दैट शी रिमाइंडेड टू हर सन दैट यू मस्ट टेक द डायरी अलॉन्ग विथ यू। सो ये कुछ पेज हैं अमित की डायरी से जो उसने लिखे हैं वाइल ही वॉज ऑन हिज जर्नी, राइट। ये कुछ उसके पेज हैं जो उसने लिखे थे।
द मॉर्निंग डैडी टुक अस फॉर एंटी येलो फीवर इंजेक्शन। मॉर्निंग जो थी सुबह 1 जून को, ये इसकी डायरी पे है, तो इसके फादर ने इसको एंटी येलो इंजेक्शन, फीवर इंजेक्शन के लिए ली। ये एक वैक्सीन है जो हर एक को करवाना पड़ता है। व्हेन समबडी प्लान्स टू विजिट अफ्रीका, तो उसको ये वैक्सीन करवाना पड़ता है। Everyone who plans to visit Africa has to be injected for this। उसको ये वैक्सीन जो है वो essentially करवाना पड़ता है। My arm still hurts from the jab। jab you know, jab is actually the वो यहाँ जहाँ से वो इंजेक्शन का, जहाँ से इंजेक्ट किया होता है वो जगह, उसको still hurt था ये। But Amit was so excited and was so happy and delighted and he forgot and ये सब वो चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही प्लेजर होता है, इसको बहुत ही डिलाइटेड होता है। और इसके इस जो इसको हर्ट होता है, जो इसको दर्द होता है, इससे जो इसकी एक्साइटमेंट है वो डिमिनिश नहीं होती है, वो लेस नहीं होती है, वो ये मतलब स्टिल जो है वो हैप्पी होता है और एक्साइटेड होता है।